Okay, so hello everyone. Let me welcome all students and parents to this very important session titled CUET Crack the Code. Very important topic, very important exam. एंड ये इसके बारे में समझना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आज के समय में हर बच्चे को देना होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एकेडमिक स्ट्रीम। ये एक ऐसा एग्जाम बन गया है जो हर स्टूडेंट को देना होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द काइंड ऑफ प्रोग्राम और द करियर चॉइस यू आर प्लानिंग टू मेक। सीयूईटी किसी बच्चे के लिए ये प्लान ए ऑप्शन बनेगा, किसी के लिए ये प्लान बी बनेगा, किसी के लिए ये प्लान सी होगा, लेकिन दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी इन योर बुके. And you, each student who is either in class 11th and 12th will have to write this exam for sure. There is no escape from this, and hence it's important for all students and parents to understand what is this COET all about, and we'll talk about the finer details about this examination. Okay, so let me quickly start. I hope all the students are attending this particular session along with the parents. And in case students are not able to attend it because of the midterms or exams, so I will request only parents to be there, take notes, and then we can catch up with the kids at a later point in time. Okay, so great. So can I have a quick understanding about your academic stream? If you can put in C for commerce, H for humanities, M for medical, N for non-medical. So to understand what kind of a background of students I have today in my counseling session. So it's a small group counseling session so that your queries and questions can be answered. Quick, Shruti, commerce, great. What about others? Okay, humanities. The intent is this is a stream neutral session. The choices or the exams or the courses or the programs I'm going to talk to you, they are all stream neutral programs, and not, so it is relevant for students with maths, without maths, commerce, humanities, PCM or PCB background. Okay, so three important things which I want to understand. I want to ask you, have you given a thought about which career or which college or which course are you going to be in? March is when we write our entrance examinations, board examination. July is when you typically join a particular college. So have you given a thought? Where will you be? Dipanshu, mujhe bataiye. So which college are you thinking about? What course are you dreaming about? What career are you dreaming about? Where will you be? RMNLU, क्लैट देना है, ठीक है. What about others? And अगर आप कुछ बच्चे confused हैं तो please write confused, not sure, not decided, so that we can understand where are we today and what are your aspirations. Okay, so Bhumi saying CUET, confused. Cat is after Bhumi 12th, नहीं, after graduation. So after 12th is IPM, IP MAT बोलते हैं उस एग्जाम को. Okay, great. What about others? CA 12th के बाद नहीं होता. Shruti, CA is after graduation or along with graduation. My focus is what after class 12th, July, which college? Okay, great. What about others? Confused हैं, not sure हैं. And that is why this particular session is going to be of some great help. What exactly I'm going to cover today? I'm going to talk about the changing education landscape, क्योंकि हमारे टाइम पे admissions का criteria अलग था, how things have changed and how will the admissions take place. Okay, how do you go about deciding the course, college or career pathway? What is the right approach? We'll talk about CUET in great depth today. The exam, the pattern, the challenges, the selection process, the role of board marks in the overall selection process. There are some stream neutral options based on CUET examination. You can look at that. What is this aptitude test all about? And what are the 3 golden rules which students and parents can follow so that you can crack every single aptitude test. So this is going to be the broad agenda for the day. Okay, and my name is Deepak Madan. I head Career Launcher Gurgaon and Faridabad. I've been counseling, teaching, mentoring kids. Okay, no problem, Bhumi. I will let you know how do you go about logging into it. Okay. So, I've been counseling, teaching, and mentoring kids for last 24 years, and I've been writing these exams. So this is my CUET scorecard is here. So I've been, I've written CET in 2022, 2023, and so when I'm talking to you today, I'm carrying the feedback of the exam
examination hall, the kind of examination, the both 22 and 23 were the online examination format, right? So I've gone through that grind myself because there is no age limit to CUT. Any student or parent can go ahead and write CUT irrespective of the age you are in, okay? Second important qualification, which will be very, very important before I move on for you to understand is I am a parent myself. तो मैं सारे बच्चों के दुख दर्द कलेश समझ रहा हूँ, मैं पेरेंट्स का पेन पॉइंट समझ रहा हूँ, द काइंड ऑफ चैलेंज एवरी सिंगल पेरेंट इज गोइंग थ्रू related to the careers and the aspirations of the kids. So it's a very, very important juncture for every student and parent. And when I'm talking to you today, I've taken all these concerns into the account. Okay. So on that note, let me talk about this. So let me start with number one, the basic foundation of how do you start. So I'm going to start with very, very basic steps. Okay. पहला learning for the day. आज का सबसे पहला learning है we have to focus on college. डिग्री का वायना नहीं है. BA, BCom, BSc, B Pharma, BTech, BBA, सबका कोई वैल्यू नहीं है. रेस लग रही है कॉलेज की. Focus should be to get admission into one of the top college, whether it is DU or it is law or management or hospitality or any other program. So college becomes the central point. You know, my father at my age used to tell me, no knowledge without college. It's a very old saying. Okay, so please be very, very clear. Learning number one, एक अच्छे कॉलेज में, एक टॉप कॉलेज में जाना है. That has to be your priority number one. Okay. Number two, second important thing. What is the definition of a top college? How do you define? There can be various parameters because you're going to choose these colleges very, very soon. So the definition of a top college is what kind of a placement these colleges offer. I know all of you. You will say placements. I am with you on this. ठीक है? But placement होती किसकी है? Placement होती है students की. So the college which has got best quality of students in terms of the academic or intellectual capacity is going to get one of the best placements, and hence आपका सेकेंड इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग आज का होना चाहिए कि मेरे को एक ऐसे कॉलेज में जाना है जहां पे एक रिजिड, स्ट्रिंजेंट, टाइट सिलेक्शन प्रोसेस है. जितना सिलेक्शन प्रोसेस रिजिड होगा उतना अच्छा स्टूडेंट का क्राउड होगा, और जितना अच्छा स्टूडेंट का क्राउड होगा, इंटेलेक्चुअल क्राउड होगा, उतना अच्छा प्लेसमेंट होगा. सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी, वेरी फंडामेंटल. आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी, वेरी क्लियर. सो आई हैव स्टार्टेड विद सम वेरी फाउंडेशन स्टेप्स. सो लर्निंग नंबर वन, top college has to be your goal. And second important thing is look at the selection criteria, because very, very soon सारे बच्चे और पेरेंट्स कुछ काउंसलर्स को, मेंटर्स को इधर उधर सर्च करना शुरू करते हैं. ये कॉलेज अच्छा है, वो कॉलेज अच्छा है, इसमें जाऊं, उसमें जाऊं, एंड ऑल ऑफ दैट. यू हैव टू लुक एट द सिलेक्शन क्राइटेरिया. दैट्स गोल नंबर 2. ओके, आगे चलते हैं जी. सो वी हैव स्टार्टेड विद फर्स्ट थिंग. सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, चैप्टर नंबर 2 फॉर द डे. व्हाट are the two important decisions? Have you taken these two decisions? If you have not taken these two decisions, you should take it right away. क्या करना है और कहां से करना है? आप इस डिसीजन को जितना डेफर करेंगे उतना ज्यादा चैलेंजिंग होता जाएगा आपके लिए इस जर्नी को कवर करना. What do you want to do and from where are two fundamental decisions. Students who are in class 12th, how much time do you think you are left with? 3 months. 4 months. नहीं समझ आ रहा? You don't agree with me? Class 11th, how much time are you left with? Class 11th will say, I'm very, very glad. अभी तो बहुत समय पड़ा है, 2 साल हैं, 26 में एग्जाम देना है, and all of that. No, class 11th is left with 10 to 12 months. Let me show you a quick timeline of your career plan. Okay, so we are in the month of September. Class 12th is writing their half yearly examination. We all know that. December के अंदर प्री बोर्ड आ जाएगा. January के अंदर प्रैक्टिकल्स, इंटरनल्स आ जाएंगे. Feb is when your board kicks off. 21st Feb इस साल शुरू हो गया था. May is when you have these entrance examination. So that means effectively आपके पास टाइम कब से है? सितंबर से लेके दिसंबर तक का ही टाइम है, क्योंकि once your प्री बोर्ड kicks off उसके बाद तो कुछ समय बनने वाला नहीं है. September, October, November and December, we are talking about 3.5-4 months की window. That's it. That's it. Guys, उसके बाद कुछ समय नहीं है. क्लास 12th के बाद समय आएगा बोर्ड एग्जाम के बाद. So that's the kind of timeline you have. Let's talk about class 11th. Don't feel very happy and excited. बहुत समय नहीं है आपके पास भी. So 11th half yearly exams are happening.
फेब में इनके फाइनल्स हो जाते हैं, मार्च में यू मूव टू क्लास 12th, एंड सितंबर इज व्हेन योर हाफ ईयरली एग्जाम्स एंड योर प्री बोर्ड स्टार्ट्स इन द मंथ ऑफ November or December 2025. So typically class 11 students have a timeline of September to October 2025, which is around 14 months. 2 महीने निकाल दीजिए, 1 महीना निकालिए आप ये 11th के 15 days half yearly of class 11th, 15 days half yearly of class 12th, and then 1 month for the half yearlies of for the finals of class 11. That makes it 2 months. At least 12 months तो अभी बच गए. 14 में से 2 निकाल दीजिए, 12 बच गए. 12 में से आप अगर 1 या 2 महीने निकाल देंगे, समर ब्रेक, दिवाली, दशहरा, फंक्शन, तबीयत खराब हो गई, कुछ हो गया, effectively students who are in class 11th, you are left with nothing but a window of exactly 10 to 11 months. That is all you have क्लास 11th किड्स, बिकॉज 11th के पास भी प्री बोर्ड्स के बाद समय नहीं बचने वाला है. सो टाइम इज असेंस. एंड लेट मी कम बैक टू माय स्टेटमेंट नंबर 1. क्या करना है और कहां से करना है? अगर ये 2 डिसीजन आपने नहीं लिए हैं, दिस इज द राइट जंक्शन. टेक इट नाउ. सूनर यू टेक इट, द बेटर इट इज for you. Let me talk about the third part of the lesson number 3. So lesson number 1 was the importance of the college. Lesson number 2 is the timeline. अब हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की. 2001 तक 2 broad criteria होते थे एडमिशन के. Criteria number 1 was entrance exam. Criteria number 2 was merit. Criteria number 1 was for a lot of these, you can say professional programs. Okay, so called professional courses like law, management, hotel management, mass comm, journalism, okay, JEE, NEET, and a lot of other stuffs. Merit-based selection criteria was followed primarily by Delhi University, and इसीलिए parents who are attending will understand and agree कि during our time also जितने अच्छे नंबर आते थे उतना अच्छा DU का कॉलेज मिलता था. अच्छे नंबर अच्छा कॉलेज, खराब नंबर खराब कॉलेज, एंड 95 के नीचे कुछ नहीं मिलता था DU के अंदर. एटलीस्ट अच्छा तो कुछ नहीं मिलता था. ठीक है. 2022 onwards things changed. CUT got introduced. Entrance exams continued. Professional courses के जो एग्जाम होते हैं वो आज भी हो रहे हैं. So there is no change in this particular approach. But in merit-based selection criteria abolish हुआ and entrance exam introduce हो गए. The exam is titled as CUET, Common Universities Entrance Examination. Now, CUT has become gateway to some of the top universities in the country, which includes DU, JNU, BHU, Aligarh Muslim University, Jamia Millia Islamia, Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Tata Institute of Social Sciences, and B.R. Ambedkar University, Footwear Design and Development Institutes, and a lot of other universities, some of the top universities. So the list is endless. So CUT has become gateway to 250 plus universities officially. Now CUT changed the landscape of the selection process. Look at this boy, Umang, one of our students. Umang got admission into SRCC, one of the top commerce college, with only 96%. कट ऑफ तो इसकी बहुत ज्यादा जाती थी जब मेरिट के बेस पे एडमिशन होता था. Another girl called, she reached LSR, Varda reached LSR with just how much? She reached LSR with just 85% marks in class 12th, which is unbelievable because LSR ki cutoffs were typically 100%. The first cutoff is always 100%. So she reached with just 85% in class 12th. What does this indicate? It clearly indicates that today, to get admission into this thing, you have to crack the exams, and there are entrance exams like CUT and few other exams, which is very, very important. Okay, let's quickly understand about CUT. It's very CUT का एग्जाम जो है, so 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, एग्जाम जो इस साल हुआ, 250 यूनिवर्सिटीज ने पार्टिसिपेट किया, 3 लाख से ज्यादा सीट्स के एडमिशन इसके थ्रू दिए गए, एंड around 3.84 lakh student registered, 11 lakh student appeared for the exam. तो 11 लाख बच्चों से ज्यादा ने इन एग्जाम को अपीयर किया है. एक्चुअल एग्जाम को, एग्जाम 387 सिटीज में हुआ, 23 कंट्रीज में कंडक्ट किया गया एग्जाम, इंडिया के बाहर. सो व्हाट व्हाई आई एम शेयरिंग दिस पर्टिकुलर डेटा विद यू इज इट गिव्स यू अ पर्सपेक्टिव ऑफ द एग्जाम. इट गिव्स यू the aura of the exam, that exam which was conducted in 23 countries outside India. You can understand the magnitude of this exam. Okay, test is conducted by NTA, same body which conducts the exam called NEET and other lot of exam like JEE. Okay, and this exam, so DU के लिए तो और कोई रास्ता ही नहीं. अगर आपको DU में जाना है, irrespective of whichever course you are looking at, the only way is to write CUET. There is no other way out. Okay, so this is the
about the CUT as exam, the perspective of CUT. Okay, CUT exam में पूछा क्या जाता है, and I hope you all are taking notes. You are not taking a screenshot of all of this. बच्चों लिखेंगे तो याद रहेगा. That's why I requested each one of you to carry a notepad and a pen next to you. Okay, you write, you remember, you read, you forget. मेरे टीचर ऐसा कहते थे, राइट? तो लिखिए, बेहतर रहेगा आपके लिए. रिटेंशन इज गोइंग टू बी बेटर. ग्रेट. तो सीयूटी एग्जाम में बात करते हैं. सीयूटी के पेपर पे आ जाते हैं. सीयूटी के पेपर में 3 चीजें पूछी जाती हैं. ओके, 3 सेक्शंस होते हैं. जब आप सीयूटी का फॉर्म भरने जाएंगे तो इसी फॉर्मेट में आपको सीयूटी का फॉर्म भी भरना है. सो लेट्स अंडरस्टैंड. सो सेक्शन नंबर 1. ओके, सेक्शन नंबर 1 इज लैंग्वेज. लैंग्वेज क्या है हमारी? इंग्लिश. नाउ डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दिस इंग्लिश. Is this English same as your school English? No. This exam, CUT का एग्जाम एक पैन इंडिया एग्जाम है जिसको स्टूडेंट्स अक्रॉस मल्टीपल बोर्ड्स आर गोइंग टू राइट इट. फॉर एग्जाम्पल IB बोर्ड, ICSE बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, तमिलनाडु बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड. That means this does not include your prose, poetry, literature or whatever. So this actually covers grammar, vocabulary, unseen passages, comprehension and something which is generic in language. Okay, now do you study English? No. When do you study English? A day before the exam, night before the exam and all of that. बच्चों ये गलती आप बिल्कुल मत करें. Most of the students including my own son said कि पापा इंग्लिश भी कोई पढ़ने का सब्जेक्ट है and you give least importance to the subject. This is not what you should be doing. So English is something which is very very important. Doing well in English, just doing well in English is not good enough. You have to be the best. Around 1.5 करोड़ बच्चे 12वीं का एग्जाम लिखते हैं हमारे देश में हर साल. एंड हर बच्चे को ये लगता है कि इंग्लिश आसान है, इंग्लिश इजी है, एंड दे टेंड टू स्किप. अच्छा होना इंपॉर्टेंट नहीं है. इंग्लिश में अगर आप 99% 100% मार्क्स नहीं ले रहे, यू आर नॉट गुड. बिकॉज अगर आपको इंग्लिश आसान लगती है इसका मतलब हर बच्चे को इंग्लिश आसान लगती है. एंड दैट इज वाई cutoffs in English are extremely high. I hope you have understood it. Second important section is domain. Domain क्या है? Domain वो चीजें हैं जो आप पढ़ते हैं स्कूल के अंदर. Domain वो सब्जेक्ट्स हैं जो आप स्कूल में पढ़ रहे हैं. Accounts, Eco, Business Studies, History, Pol Science, Sociology, Psychology. All these subjects are called as domain subjects. ठीक है? थर्ड सेक्शन इसके अंदर आता है जर्नल टेस्ट का. नाउ व्हाट इज जर्नल टेस्ट? जीटी के अंदर 4 चीजें पूछी जाती हैं. जीके, करंट अफेयर्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग. सो आई रिपीट, जीके, करंट अफेयर्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग. ये 4 चीजें जर्नल टेस्ट के अंदर पूछी जाती हैं. नाउ हाउ मेनी पेपर्स आर यू गोइंग टू राइट? एग्जाम कितने दिन है? सीयूटी के अंदर माई अंडरस्टैंडिंग कितने एग्जाम आप दे सकते हैं? हर बच्चा सीयूटी के अंदर 6 एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है. यू कैन चूज मैक्सिमम ऑफ 6 सब्जेक्ट्स. ओके, द बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन फॉर दीज सब्जेक्ट्स इज 1 लैंग्वेज, 4 डोमेन सब्जेक्ट्स एंड 1 journal test. So this is my understanding. This is the perfect and the most ideal combination. ज्यादातर बच्चों के अंदर 4 डोमेन सब्जेक्ट्स ही हैं, इससे ज्यादा सब्जेक्ट्स होते ही नहीं. बिकॉज 12th में आपके पास 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, 4 डोमेन प्लस 1 लैंग्वेज. दैट मीन्स 1 लैंग्वेज, 4 domain subjects and 1 journal test is the best and a very classical combination. Why I'm saying it's a classical combination? Because it opens up multiple paths ahead of you. It opens up almost all possible options ahead of you, and hence every student, please take a note, आपको 6 एग्जाम देने पड़ेंगे एंड ये 6 सब्जेक्ट्स आपको इस तरह से चूज करने हैं. 4 डोमेन के सब्जेक्ट्स, 1 जनरल टेस्ट और 1 लैंग्वेज. लेकिन 1 जनरल टेस्ट का जो पेपर देंगे उसके अंदर 4 सब्जेक्ट्स को इकट्ठे मिला दिया गया और 1 पेपर बनाया गया है. ठीक है, अब हम पेपर के थोड़े पैटर्न को समझते हैं. आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर. अगर यहां तक कुछ कंफ्यूजन नहीं है तो एक बार मुझे चैट बॉक्स में लिख दीजिए क्लियर. सो इफ यू आर क्लियर दिस पॉइंट, प्लीज टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स so that you can understand, you are able to understand, comprehend. क्लियर है? अजीत को क्लियर है, रितिका क्लियर है, ग्रेट, थैंक यू, गुड. यहां तक हम क्लियर हैं. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. अब हम पढ़ते हैं पेपर के पैटर्न को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जाम में जो पेपर आएंगे क्या स्ट्रक्चर होगा, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर. एंड लेट मी, आई विल कीप
pausing the chat window for a while in between, so that you can focus on what I'm saying. And since I've been with kids for so many years, I understand the kind of questions which you might have, so I'll try addressing all of them proactively. Okay, तो इंग्लिश की बात करते हैं. सीयूटी एग्जाम के पैटर्न को हम समझ रहे हैं. तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पेपर पैटर्न की. सीयूटी के पेपर में सबसे पहले इंग्लिश आता है. इंग्लिश के अंदर 50 क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन करने हैं और टाइम मिलेगा 45 मिनट का. आई रिपीट, इंग्लिश के पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे? इंग्लिश के पेपर में आएंगे 50 क्वेश्चन, 40 करने हैं, टाइम कितने मिनट का मिलेगा? 45 मिनट का. सो इसका मतलब 10 ऑप्शनल क्वेश्चंस आ गए हमारे पास में. कितने ऑप्शन है? 10. सो 50 क्वेश्चंस आएंगे, 40 अटेम्प्ट करने हैं. 40, इसका मतलब 10 क्वेश्चंस हैं जो आप चूज कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं. 40 क्वेश्चन को करने के लिए 45 मिनट का समय मिलेगा. सो वन वेरी लॉजिकल कंक्लूजन इज 40 क्वेश्चंस एंड 45 मिनट. दैट मेक्स इट more than 1 minute to a question, but that is not correct. Why? Because when I attempted this particular paper, मेरे को ज्यादा समय लग रहा था, क्योंकि 40 सही क्वेश्चन करने. बहुत बार ऐसा होगा बच्चों, जब आप 40 सही क्वेश्चन करने के लिए यू माइट एंड अप अटेम्प्टिंग मोर देन 40, 45, 47, 42, एंड हेंस द टाइम अवेलेबल per question is almost a minute per question. That's the essence of this particular data or slide. Okay, so second section आता है डोमेन का. 50 क्वेश्चन सेम है, 40 ही अटेम्प्ट करने हैं, टाइम मिलेगा 45 मिनट का. कुछ सब्जेक्ट्स में आपको 15 मिनट का ग्रेस टाइम मिल रहा है. व्हाट आर दोस? देयर आर 5 subjects where you get grace time. Okay, not 5, basically 6 subjects. What are these? So physics, chemistry, maths, accounts, economics, and computers. So 6 subject gets a grace time of 15 minutes because they are all numerical based subjects. Last section आता है जर्नल टेस्ट का, एंड जीटी के अंदर भी 60 क्वेश्चन आएंगे, 50 करने, 60 मिनट का टाइम. So broadly speaking, this is the structure of CUET as a paper. I hope it is clear, it is helpful. Okay, now अगर मैं मार्किंग स्कीम की बात करता हूं, दिस पेपर इज वेरी डिफरेंट. आज तक जब भी आपने डोमेन्स के पेपर अटेम्प्ट करें, डोमेन्स व्हाट स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है, चाहे वो 10th तक था आपका साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, सोशल साइंस, व्हाटएवर. 11th में आ गया आपका अकाउंट्स, इको, बिजनेस स्टडीज, और लेट्स से हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, और इंग्लिश, और लेट्स से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो. नाउ डोमेन सब्जेक्ट्स में आज तक आपकी कभी नेगेटिव मार्किंग थी ही नहीं. अब लेकिन इस एग्जाम के अंदर इंग्लिश में भी, डोमेन सब्जेक्ट्स में भी, और जर्नल टेस्ट में सब में नेगेटिव मार्किंग है. +5 फॉर राइट आंसर, -1 फॉर रॉन्ग आंसर, एंड दैट मेक्स दिस पेपर इवन वेरी वेरी डिफरेंट एंड वेरी डिफिकल्ट. सो इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ पेपर. वी आर नॉट यूज्ड टू नेगेटिव मार्किंग. आज तक तो हमें यही पाल पोस के बड़ा किया गया कि बेटा आता है कि नहीं आता है, बोर्ड में कुछ जरूर लिख के आना है, छोड़ के नहीं आना है कोई भी क्वेश्चन को इनडायरेक्ट फॉर्म में भी लिख के आ जाइए, आपको कुछ नंबर मिल जाएंगे. आपने स्टेप वाइज मार्किंग होती है, स्टेप 2, स्टेप 3 तक किया, लास्ट स्टेप नहीं किया, फिर भी मार्क्स मिलेंगे. दिस इज द ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर. नेगेटिव मार्किंग होगी, राइट और रॉन्ग, देयर इज नथिंग इन बिटवीन. ओके, सो दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी डिफरेंट एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड. हेंस, एंड जिस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, यू नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दीज काइंड ऑफ अ एग्जामिनेशन. तो 3 कंक्लूजन जो मैं इस पर्टिकुलर, जो हमने अभी तक सीयूटी के बारे में सीखा, समझा, इससे 3 कंक्लूजन मैं ड्रॉ कर सकता हूं. व्हाट आर दोस 3 कंक्लूजन आई लाइक टू ड्रॉ फ्रॉम दिस? कंक्लूजन नंबर 1, ओके, अगर हम सेक्शन 1 को देखते हैं विच इज लैंग्वेज, और अगर मैं सेक्शन 3 को लेता हूं विच इज जर्नल टेस्ट, सो इफ आई सम सेक्शन 1 एंड सेक्शन नंबर 3, द रिजल्ट इज एप्टीट्यूड टेस्ट. दैट्स one learning which I want you to carry from this. So you can take a note of it. Write this equation. Section number 1 English plus section number 3 GT gives you the result is aptitude test. That's learning number 1. Learning number 2. Okay, CUET को अगर मैं learning 1 को अब इसको sum up करता हूं, CUET broadly इसका मतलब 2 चीजों का एग्जाम बन गया. नंबर 1 एप्टीट्यूड टेस्ट का. एप्टीट्यूड टेस्ट कैसे? सेक्शन 1 एंड सेक्शन 3 इज एप्टीट्यूड टेस्ट, एंड देन उसके बाद सेकेंड डोमेन का एग्जाम बन गया. डोमेन क्या हुआ? सेक्शन नंबर
3 सेक्शन नंबर 2 हमारा डोमेन टेस्ट आ गया. सो ब्रॉडली मैंने क्या किया, सीयूईटी को मैंने 3 सेक्शंस ऑफ सीयूईटी को मैंने अब 2 ब्रॉड क्लस्टर्स में ग्रुप कर दिया. सीयूईटी एक एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्जाम बन गया और डोमेन टेस्ट का एग्जाम बन गया. आई होप दिस पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग इज वेरी क्लियर. सो इफ एनीबडी आस्क यू सीयूईटी कितनी चीजों का एग्जाम है, यू हैव टू से सीयूईटी बेसिकली इज एग्जाम ऑफ 2 ब्रॉड सब्जेक्ट्स, एप्टीट्यूड टेस्ट एंड अ डोमेन टेस्ट. एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर 2 सेक्शन आते हैं, डोमेन टेस्ट के अंदर 1 सेक्शन आता है. कुल मिला के सीयूटी एग्जाम में 3 सेक्शन होते हैं. सो दिस अंडरस्टैंडिंग एंड इतनी क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग should be there in each one of you with students as well as parents. Great. अब हम आगे चलते हैं जी. अब मैं बात करना चाहता हूं conclusion. Third important conclusion which I will like to draw out of this. Conclusion number 1. बोर्ड की तैयारी में और सीयूईटी की तैयारी में बहुत सारे differences हैं. Now what are these differences? What are these differences? We have understood. So बोर्ड एक सब्जेक्टिव पेपर होता है, सीयूटी एक ऑब्जेक्टिव पेपर है. बोर्ड में नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, सीयूटी में नेगेटिव मार्किंग होती है. बोर्ड में सिर्फ 12th का सिलेबस आता है, सीयूटी के अंदर 12th का सिलेबस एंड डिलीटेड सिलेबस भी पूछा जाता है. बोर्ड में मिलते हैं हमें 3 मिनट एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सीयूटी में मिलते हैं हमें लेस देन 1 मिनट और अ मिनट, नथिंग मोर देन दैट. बोर्ड में प्रीवियस या पेपर्स अवेलेबल होते हैं, सीयूटी में इस साल हुए फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, नॉर्मली नहीं होंगे. मूविंग फॉरवर्ड भी व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग इज सीयूटी इज गोइंग टू बी अ ऑनलाइन पेपर ओनली. ओके, बोर्ड में क्या होता है, सैंपल ये जो हम बात करते हैं एक सेट पैटर्न है, देयर इज समथिंग कॉल्ड ब्लूप्रिंट, यू ऑल नो दैट. सबसे पहले अब जब आप चैप्टर देखते हैं, द फर्स्ट थिंग अ टीचर टेल्स यू और व्हाट यू लुक एट इज किस चैप्टर की क्या मार्किंग स्कीम है, क्या वेटेज है. सीयूटी में किसी चैप्टर की किसी टॉपिक की कोई वेटेज या मार्किंग स्कीम है ही नहीं. दैट मींस आपको सब टॉपिक पढ़ने हैं, सब टॉपिक्स को पढ़ना है, पूरे के पूरे एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है. एंड दैट इज वन थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो आज के बाद जब आप डोमेन सब्जेक्ट्स को स्टडी करना शुरू करेंगे, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ये बात सोचनी नहीं है कि ये बोर्ड में इंपॉर्टेंट है या नहीं, इसकी तैयारी क्यों करूं. एनसीईआरटी किताब में है तो अच्छे से करिए, क्योंकि आपको ये एग्जाम में देना पड़ेगा. बोर्ड में नहीं देना पड़ रहा है, सीयूटी में तो देना पड़ेगा. हेंस एवरीथिंग बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर. आगे चलते हैं. ठीक है, एक एग्जाम्पल देना चाह रहा हूं मैं आपको कि सीयूईटी का, एंड अगर आपको ये स्लाइड समझ आ गई, आपने सीयूईटी को बिल्कुल डायसेक्ट कर लिया, समझ लिया, यू हैव अंडरस्टूड इट टू द कोर. ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड 2 थिंग्स. सीयूईटी एक अलग बॉडी है, और बहुत बार पेरेंट्स एंड स्टूडेंट ये अज्यूम करते हैं कि सीयूईटी सिर्फ डीयू है. ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. सीयूईटी एक बॉडी है, इट्स ए इंडिपेंडेंट बॉडी. द एग्जाम इज कंडक्टेड बाय एनटीए. सीयूईटी का एग्जाम एनटीए कंडक्ट करता है, एंड इस सीयूईटी के स्कोर को सारी यूनिवर्सिटीज अपने अपने स्टाइल से यूज करती हैं. सो आई कैन से सीयूईटी इज हियर एंड देन ये सब अलग अलग हैं, डीयू, PHU, so they are all universities. ठीक है, टिस, जामिया. सो ये सारे के सारे सीयूईटी के स्कोर को फेच करते हैं. सीयूईटी का स्कोर BHU भी खींच लेगा, सीयूईटी का स्कोर टिस भी खींचेगा. ऑल कॉलेजेस फेच द स्कोर ऑफ सीयूईटी बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट. आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर. तो सीयूईटी इज वन कॉमन एग्जाम कंडक्टेड. सीयूईटी ने कोई रूल नहीं बनाया कि किसके लिए क्या रूल है. रूल्स, एलिजिबिलिटीज यूनिवर्सिटीज ने क्रिएट करी हैं अपने लिए, प्रोग्राम बाय प्रोग्राम. एंड इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा जो आपको क्लैरिटी देगा ओवरऑल. सो मैं सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल ले रहा हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल. सो दिस स्लाइड टॉक्स अबाउट ओनली दिल्ली यूनिवर्सिटी. तो मैं इस टाइम पे सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहा हूं, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलग अलग प्रोग्राम्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग है. एग्जाम्पल की बात करते हैं. नंबर 1, तो अगर मैं बात करता हूं, डीयू के 3 प्रोग्राम्स हैं, BMS, BFIA, BBE. इन 3 प्रोग्राम्स की एलिजिबिलिटी क्या है? एनी वन लैंग्वेज, लेट्स से दिस कैन बी इंग्लिश बिकॉज मोस्ट ऑफ यू विल हैव इंग्लिश. ओके, one compulsory subject which is maths and a journal test.
डोमेन टेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सेम यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक और प्रोग्राम लेट्स से कॉल्ड बीकॉम की एलिजिबिलिटी क्या है? एनी वन लैंग्वेज विच इज इंग्लिश, वन डोमेन सब्जेक्ट एंड वन जर्नल टेस्ट, दैट्स इट। बाकी डोमेन नहीं चाहिए। दिस इज वन ऑफ द क्राइटेरिया। देयर इज अनदर ऑप्शन फॉर बीकॉम, वन लैंग्वेज, थ्री डोमेन सब्जेक्ट्स एंड नो जीटी रिक्वायर्ड। सो बीकॉम में जाने के दो क्राइटेरिया हैं। अब हम बात करते हैं बीकॉम ऑनर्स की। सेम यूनिवर्सिटी, थर्ड प्रोग्राम कॉल्ड बीकॉम ऑनर्स, एनी वन लैंग्वेज, लेट्स से दिस इज इंग्लिश, ओके। इधर मैथ्स इज कंपल्सरी और अकाउंट्स इज मैंडेटरी। सो कंपल्सरी सब्जेक्ट या तो मैथ्स है, किसके लिए? ऑनर्स के लिए, बीकॉम ऑनर्स के लिए। वन एनी टू डोमेन सब्जेक्ट, नो जीटी रिक्वायर्ड। थर्ड, इकोनॉमिक्स, any one language, one compulsory subject called maths, and two domain subject, no GT required. Third program called BA Honors in Journalism of Delhi University, one language which is compulsory subject called English, and one journal test, no domain test required. What I'm trying to tell you with this simple slide is same university के अलग अलग प्रोग्राम्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग है। अगर आपको ये बात समझ आ जाती है, यू हैव कॉन्कर्ड वन सिग्निफिकेंट लर्निंग एज फार एज CUET इज कंसर्न। एंड सिमिलरली BHU की अगर हम इस तरह से स्लाइड्स बनाएंगे, BHU के अलग अलग प्रोग्राम्स की एलिजिबिलिटी अलग अलग है। सेम यूनिवर्सिटी CUET के स्कोर कार्ड को अलग अलग तरीके से यूज कर रही है अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए। एंड दिस इज वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एसेंस ऑफ CUET, how universities are using the scorecard. I hope this particular part is very very clear. In case you have a question or a query or a doubt, I'll unmute all of you and you can ask me now. Okay, I'll pause here for 30 seconds and you can ask me now. Yes. Is it clear? अगर clear है तो लिखिए I am clear. Please. बहुत important aspect है and this is where majority of the students or parents do get stuck. क्लैट बिल्कुल अलग है दीपांशु, अभी हम उस क्लैट पे आ रहे हैं. यू नीड टू गिव मी 5 minutes, just 5 more minutes before we went. I hope criteria for DU for fine arts, it is similar. I'll come to the individual, understand the essence. Okay, great, perfect है. So I hope all of you are very very clear about this. अब हम आगे चलते हैं, अब मैं बात करता हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी की. नाउ दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाने के लिए जो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस है वो आसान हो गया या मुश्किल हो गया? CUET के आने से क्या चेंज आ गया? ये हम बात करेंगे इसके बारे में. अब हम बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के. सबसे पहले मैं समझाना चाहूंगा आपको नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स. 2021 में मेरिट के बेसिस पे सिलेक्शन होता था. DU में एप्लीकेंट्स कितने थे? 2.87. 2022 में CUET इंट्रोड्यूस कर दिया गया. कब? पहली बार. सो दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन CUET वाज कंडक्टेड. एप्लीकेंट्स की संख्या बढ़ गई 6.64 लाख. 2023 सॉरी, सेकेंड ईयर ऑफ CUET, एप्लीकेंट्स की संख्या बढ़ गई 11.16 लाख. 2024 एप्लीकेंट्स आर 1.13 lakhs. ओके, तो इफेक्टिवली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर हम ये ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, 2.8 lakh 7 students became 11.16 in a span of 2 years. सीट्स में कोई चेंज आया? कोई चेंज नहीं आया. सिलेक्शन रेशो गिरता जा रहा है एज वी आर मूविंग फॉरवर्ड. व्हाट डज दिस स्लाइड इंडिकेट? व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस स्लाइड इज CUET के इंट्रोड्यूस होने से एप्लीकेंट्स की संख्या बढ़ गई है एंड हमारे लिए सिलेक्शन प्रोसेस डिफिकल्ट हो गया है बिकॉज सीट्स बढ़ी नहीं, एप्लीकेंट्स बढ़ गए एंड सिलेक्शन रेशियो डिप कर गया. ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जब एक कॉमन एग्जाम हो गया हमारे देश में, सो एवरी स्टूडेंट आफ्टर 12th विल
end up writing one common exam. And since because the exam is common, form is common, and with one common form you're going to apply to multiple universities, so every single student understands that DU is a very good university. So DU के applicants one common exam के आने से बढ़ गए, because there was no additional fee. I can opt for 2 universities and you can opt for 25 universities, and there is no additional fee to be paid while you're filling out the form, and hence the applicants have gone up significantly. Okay, I hope this particular part of understanding is very very clear with all of you. मैं आपको एक और डेटा पॉइंट समझाना चाह रहा हूं कि इसके आने से सिलेक्शन में क्या बदलाव आ गए सीयूटी के एग्जाम को इंट्रोड्यूस करने से। सीयूटी के एग्जाम को इंट्रोड्यूस करने से क्या क्या चेंज आ गया, अगर मैं बात करना चाहूंगा आपके बारे में, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं सीयूटी का। आई एम ट्राइंग टू गिव यू एग्जाम्पल ऑफ सीयूटी इंग्लिश। ओके, दिस इज द स्कोर कार्ड ऑफ वन ऑफ माई स्टूडेंट। दिस इज द स्कोर कार्ड ऑफ वन ऑफ माई स्टूडेंट जो कि 2023 में जिन्होंने सीयूटी का एग्जाम दिया, और मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि इनका क्या स्कोर आया था, हाउ डिफिकल्ट और हाउ इजी इट इज टू गेट एडमिशन इनटू दिल्ली यूनिवर्सिटी। शी वांटेड टू डू साइकोलॉजी ऑनर्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, एंड का स्कोर कैसा आया। इंग्लिश में कितने सब्जेक्ट्स, कितने क्वेश्चंस करने थे बेटा, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था 40 क्वेश्चंस, 50 आएंगे, 40 करने। एक क्वेश्चन कितने नंबर का था, 5 नंबर का था। टोटल पेपर बन गया 200 नंबर का। तो सीयूटी का टोटल पेपर कितने नंबर का बन गया, 200 मार्क्स का। 200 में से दिस गर्ल हैज स्कोर्ड 199.64। इकोनॉमिक्स का पेपर कितने का था, 200 का। 200 में से शी स्कोर्ड 200 आउट ऑफ 200। एंटरप्रेन्योरशिप का पेपर कितने नंबर का था, 200। शी स्कोर्ड 200 में से 198.8। पॉल साइंस का पेपर था 200 एंड शी स्कोर्ड 200 अपॉन 200। And last was psychology, 200 marks paper, and she scored 192.72. So if I look at the best of 4 which is required for Delhi University, best of 4 में आ जाएंगे पहले 4 सब्जेक्ट्स। वाई, क्योंकि लैंग्वेज तो मैंडेटरी है बेस्ट ऑफ 4 के लिए। तो इनका टोटल बन गया 798.5 upon 800. So this is the score this girl had scored in CUET 2023. 1.5 नंबर कम है एक एब्सोल्यूट स्कोर के लिए, जस्ट 1.5 मार्क्स लेस। एंड since she's just got 1.5 mark less, in spite of such a fantastic score, it is no way a bad score at all. So she scored only 1.5 marks less, and इतना अच्छा स्कोर लाने के बाद भी she was not able to get admission into one of the best colleges of Delhi University, which is LSR, because LSR में total seats कितनी हैं? Total seats in LSR for psychology are 25. This girl scored, her rank in Delhi University for psychology was 37. She was not able to get admission. दूसरी चीज जो हम समझ सकते हैं कि 36 बच्चे इनसे आगे थे। They were ahead of this particular student because just 1.5 marks पे 36 students थे which were ahead of her when it comes to psychology merit list, and that is the kind of competition we are in today. So one fundamental thing you each parent and student has to understand today is there is no guarantee, there is no assurance कि आपने सोचा इकोनॉमिक ऑनर्स और इकोनॉमिक्स ऑनर्स में एडमिशन मिल जाएगा। आपने सोचा बीकॉम करनी है मेरे बच्चे को और बीकॉम का एडमिशन इज ऑन द प्लेट, दे आर वेटिंग फॉर यू, कम एंड जॉइन अस, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो कंपटीशन इज फेयरली चैलेंजिंग व्हेन यू टॉक अबाउट टॉप कॉलेजेस, टॉप यूनिवर्सिटीज। एंड ये गलती ज्यादातर बच्चे हर बार करते हैं, बार बार करते हैं कि एज्यूम करते हैं कि मेरे को तो ये प्रोग्राम करना है और एज्यूम कर लेते हैं कि मेरा ये प्रोग्राम में एडमिशन हो जाएगा। माई किड वॉन्ट्स टू डू management and you are sure that he is going to get admission into one of the top colleges. Please don't make that mistake. That's one fundamental thing, and that brings me to my next logical conclusion कि आपको explore करना पड़ेगा because you are preparing for CUT, you are preparing for an aptitude test as well as a domain test. The aptitude test opens up multiple road maps ahead of you, and you have to start exploring. Every single student, every single parent, our responsibility is to create
alternate roadmap. Create plan A, create plan B, create plan C for your ward. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम ये नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, बिकॉज कोई गारंटी है ही नहीं द काइंड ऑफ चैलेंजिंग. अनटिल अनलेस आपने डिसाइड किया कि मेरे बच्चे को किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है. लेकिन अगर आप एक अच्छे कॉलेज में जाने का सपना देख रहे हैं, एक टॉप कॉलेज में जाना चाह रहे हैं, हमें एक अपना ऑल्टरनेट पाथवेज बनाने पड़ेंगे, ऑल्टरनेट प्लान्स बनाने पड़ेंगे, एंड दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. एंड ऑल्टरनेट पाथ्स, देयर आर ओनली 3 पाथवेज. बहुत सारे बच्चों ने करियर डिसीजन इसलिए भी नहीं लिया क्योंकि कंफ्यूजन बहुत हो रही है ना, कि ये करूं वो करूं, वेयर डू यू गो. ओके, देयर आर ओनली 3 पाथवेज. कंफ्यूजन का कोई स्कोप ही नहीं है, मैं वो भी आपको खत्म कर देता हूं. देयर आर ओनली 3 पाथवेज. पाथवे नंबर 1 इज जेई, पाथवे नंबर 2 इज नीट आफ्टर 12th, एंड पाथवे नंबर 3 इज एप्टीट्यूड टेस्ट. तो अगर आप जेई की तैयारी नहीं कर रहे हैं, अगर आप नीट की तैयारी नहीं कर रहे हैं, द ओनली ऑप्शन लेफ्ट विद यू इज अ प्रिपरेशन फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट. देयर इज नो अदर पाथवे. तो ये कहना ही बंद कर दीजिए किसी से भी कि मैं क्लियर नहीं हूं, मेरा बच्चा क्लियर नहीं है, आगे करना क्या. कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन आपके दिमाग में है, लेकिन जब आप एग्जाम्स को देखते हैं कोई कंफ्यूजन नहीं है. एप्टीट्यूड टेस्ट की तो तैयारी कॉमन है, चाहे आप लॉ करना चाहते हैं, चाहे आप मैनेजमेंट करना चाहते हैं, चाहे आप होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं, चाहे आप मास कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, चाहे आप जर्नलिज्म करना चाहते हैं, आप कॉमर्स में जाना चाहते हैं, आप ह्यूमैनिटीज में जाना चाहते हैं, आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहते हैं, आप किसी भी जगह जाना चाहते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी करनी पड़ेगी. सीयूईटी के अंदर भी सेक्शन नंबर 1 एंड सेक्शन नंबर 3 इज एप्टीट्यूड टेस्ट, एंड एप्टीट्यूड टेस्ट will also open gateways to multiple career options for you right after class 12th. Let me give you some of these glimpses. Aptitude test open pathways for law. Law is a very fantastic career choice. Okay, I'm just going to give you a glimpse of these career choices. Law is a fantastic option. NLU Bangalore is the number 1 college in the country. इसके अंदर कॉमर्स का बच्चा भी जाता है, साइंस का भी जाता है, ह्यूमैनिटीज का भी जाता है. पहले हमारे दिमाग में क्या था, सिर्फ ह्यूमैनिटीज आता है. लॉ करने के बाद में हमारे दिमाग में क्या है कि सिर्फ कोर्ट कचहरी में जा सकते हैं. नहीं जी, आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं. बटलर इज द हॉलीवुड एक्टर, द एक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, ओके, द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूएस. मिस्टर नेल्सन मंडेला इज अ सोशल एक्टिविस्ट. महात्मा गांधी जी, मोतीलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी. दिस जेंटलमैन इज अ जर्नलिस्ट, इंडिया टुडे टीवी नेटवर्क, लॉ ग्रेजुएट. बस्सी, a law graduate. NLU Lucknow, stand-up comedian. So law is not just about, कोर्ट कचहरी. इट इज नॉट जस्ट अबाउट कोर्ट रूम. लॉ करने के बाद आज आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस खुलते हैं. कॉर्पोरेट लॉ में जा सकते हैं, वकालत कर सकते हैं, आप आगे जा सकते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर सकते हैं, जज बन सकते हैं. 23-24 साल की उम्र में आप जज बन सकते हैं. एंड देयर आर मल्टीपल नंबर ऑफ जजेस इन आवर कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, विच आर इन द एज ग्रुप ऑफ 24 एंड 26. ओके, तो इसी तरीके से एग्जाम्स देने होते हैं. अगर टॉप लॉ कॉलेज में जाना तो एग्जाम देने होंगे. क्लैट का एग्जाम होता है, एलिट का एग्जाम होता है. ये दोनों एग्जाम कब होते हैं? ये दिसंबर में ये एग्जाम्स हो जाते हैं. ओके, सो क्लास 12th के बच्चे इस दिसंबर में देंगे, क्लास 11th के बच्चे अगले साल दिसंबर में देंगे, जब आपके प्री बोर्ड चल रहे होते हैं. सिमिलरली कुछ और एग्जाम्स होते हैं, महाराष्ट्र सीईटी, Symbiosis, Christ, and some. So these are prestigious colleges and the exams which are conducted to get into some of the top colleges or universities in our country for law. अच्छे कॉलेज में जाना है तो एग्जाम देना होगा, नहीं तो आप कुछ भी किसी भी कॉलेज में पैसे देके एडमिशन ले सकते हैं, कोई एलिजिबिलिटी नहीं. अगर सैलरीज की बात करते हैं, अमेजिंग सैलरीज, 20 लाख के आसपास का एवरेज सैलरी आता है. हर तरीके की कंपनी लॉयर्स को रिक्रूट करती है. इन्फोसिस इज आईटी कंपनी, बैंक, consulting firm, law firm, every single company recruits lawyer today. Exam is again a aptitude based test. Exam में आता है English, CUT में भी था, quantitative aptitude, logical reasoning, GK plus current affairs, legal reasoning. 4 चीजें आती हैं. ये पहले 4 सेक्शन तो एग्जैक्ट CUT का रेप्लिका है. 120 क्वेश्चन, 120 मिनट, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है. ठीक है, इस एग्जाम की खासियत क्या है? मैथ सबसे आसान सेक्शन है. 12 क्वेश्चन आते हैं 120 में से, 10% वेटेज हो गई मैथ्स की. दैट मींस सबसे आसान सेक्शन मैथ्स है. जिस बच्चे को मैथ्स से डर लगता है, अंग्रेजी अच्छी लगती है, दिस इज द पेपर टू बी टारगेटेड. एंड एप्टीट्यूड बेस का पेपर है. एक और एग्जाम की बात करता हूं, मैं आपको 2-3 एप्टीट्यूड के एग्जाम्पल्स लेके बता रहा हूं क्विकली कि ये है क्या क्या. मैनेजमेंट, अगेन बहुत एप्टीट्यूड. और जब आप एप्टीट्यूड की तैयारी कर ही रहे हैं, आपके सामने मल्टीपल पाथवेज खुल रहे हैं. मैनेजमेंट इज एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम. नाउ व्हाट इज मैनेजमेंट? एमबीए,
एमबीए पहले क्या था? एमबीए पहले हमें 12th करते थे, फिर ग्रेजुएशन करते थे, फिर हमें कैट का एग्जाम देते थे और एमबीए करते थे। आज आप एमबीए कर सकते हैं डायरेक्टली 12th के बाद। प्रोग्राम्स हैं, आईपीएम प्रोग्राम का नाम है, ये एक नंबर वन चॉइस है। वाई आई एम सेइंग ये अमिताभ बच्चन है, इन माई थॉट प्रोसेस दिस इज अमिताभ बच्चन ऑफ ऑल द करियर्स, ऑलवेज इन डिमांड, हमेशा हरा भरा करियर है। एंड ड्यूरिंग माई टाइम इट वॉज इन डिमांड, ड्यूरिंग टुडे इट इज इन डिमांड, एंड इट विल ऑलवेज स्टे इन डिमांड। मैनेजमेंट करने का फायदा क्या होता है? बेहतर सैलरी, बेहतर ओहदा, ठीक है, आप सीधा मैनेजरियल लेवल पे पहुंचते हैं, एमबीए करते ही आपकी जॉब लगती है मैनेजर लेवल की, और आप डायरेक्ट लीडरशिप पोजीशन में आते हैं, सैलरीज भी बहुत अच्छी हो जाती हैं। एक एमबीए डिग्री आपको ये सिखाती है कि कैसे किसी भी कंपनी को बनाना है, ग्रो करना है, एफिशिएंट बनाना है। यू अंडरस्टैंड, यू स्टडी मार्केटिंग, यू स्टडी एचआर, यू स्टडी फाइनेंस, यू स्टडी ऑपरेशन। तो एक बिजनेस को रन करने के लिए, क्रिएट करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, एमबीए एज ए प्रोग्राम आपको एनेबल करवाता है वो, इन अ वे, ठीक है। एमबीए करने के दो तरीके, जैसे मैंने आपको बताया, पहले ग्रेजुएशन के बाद करिए, फिर कैट आता था, आज आप 12th के बाद डायरेक्टली कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स आते हैं जिनका नाम आईपीएम है, आपको बीबीए प्लस एमबीए की डिग्री इकट्ठे मिलती है। द प्रोग्राम इज कॉल्ड आईपीएम, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, एंड 12वीं के बाद आप डायरेक्टली एमबीए कर सकते हैं। You can get into IIM right after class 12th. The program is called IPM. There are 5 IIMs offering this particular program. Indore, Rohtak, Ranchi, Bodh Gaya, Jammu, 5 IIMs हैं। छठा आईएम ने इस साल से प्रोग्राम पे इनटेक स्टार्ट कर दिया है, जिसका नाम है आईएम सिरमौर। आईएम सिरमौर हैज लॉन्च्ड अ प्रोग्राम कॉल्ड बीएमएस। इट्स an undergrad program which will open up your pathway to postgrad as well in IIMs. So IIM Sirmaur is another option. IIM Bangalore has started an online program, and IIM Bangalore is going to kickstart another program which is in a offline format starting from the next year. So IIM Bangalore is into the league. अगर मैं बात करता हूं इस प्रोग्राम की खासियत क्या है, एप्टीट्यूड प्रोग्राम है, खासियत है 3 साल बाद एग्जिट। 3 साल बाद आप कहेंगे मुझे तो सीए करना है, 3 साल बाद आप कह सकते हैं मुझे तो आईएएस का एग्जाम देना है, 3 साल बाद कहेंगे मुझे तो सीडीएस में जाना है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज में जाना है, और मुझे तो यूपीएससी लिखना है, कोई व्हाटएवर। So you can move after 3 years, take a degree from IIM, go out, do what you want to do. So there is no problem at all when it comes to this particular examination. Sorry. Okay. So next हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर ऑप्शन की, एलिजिबिलिटी की, इसमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। नॉन मैथ स्टूडेंट्स कैन इजीली अप्लाई फॉर दिस, दैट्स अगेन अ ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। तो नॉन मैथ स्टूडेंट्स कैन अप्लाई, एंड दैट्स समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ग्रेट। ओके, तो नॉन मैथ स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर इट। 3 साल बाद एग्जिट है, नॉन मैथ स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो इट्स अ वेरी वेरी एक्साइटिंग प्रोग्राम टू बी लुक्ड एट। ओके, एवरेज सैलरी देखिए, एवरेज सैलरीज आर वेरी वेरी गुड। 1 करोड़ 14 लाख की हाईएस्ट सैलरी लगी इंदौर की, 30 लाख की एवरेज सैलरी लगी। सो स्केल ऑफ सैलरीज अगेन वेरी वेरी एक्साइटिंग, अच्छी सैलरीज हैं। आई एम बैंगलोर का मैंने आपको बताया प्रोग्राम आ ही रहा है। आईएफटी has started offering this particular program, नालसार हैदराबाद is offering this program, निर्मा is offering this particular program। एंड अगर आप, मैं सिर्फ आईएम्स की एवरेज सैलरी की भी बात करता हूं, एवरेज सैलरी इज अराउंड 16 to 30, 16-17 लाख तो एवरेज ही है। इंदौर की एवरेज इज 30, हाईएस्ट है इंदौर की। हाईएस्ट को अगर मैं ना भी कंसिडर करूं, एंड दिस इज एज ऑन टुडे, इमेजिन व्हेन यू पास आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंपस, इसका ये डबल तो कर ही लीजिए कम से कम, इफ नॉट मोर। ओके, सो द प्रोग्राम इज वेरी वेरी एक्साइटिंग। नॉन मैथ स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, जिन बच्चों पे मैथ्स नहीं है 12th पे, डरने वाली कोई बात नहीं है। एग्जाम कौन सा देना होगा? एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्जाम देना है, नथिंग एल्स, ठीक है। So it is something which is one of the most exciting option available today. Every year more and more number of colleges, and I will say top colleges are coming up and starting this particular program. इससे यही पता चलता है कि ये एक प्रोग्राम है जो फ्यूचरिस्टिक प्रोग्राम है, एंड 12th के बाद आपके लिए पोस्ट ग्रेजुएट का रास्ता खोल दिया डायरेक्टली। दैट इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। सो इसके बारे में हमने समझ लिया। इसी तरीके से एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी आपको अंडर ग्रेजुएट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स के लिए भी एलिजिबल करती है। व्हाट आर दोस प्रोग्राम्स? बीबीए कर सकते हैं, बीएमएस कर सकते हैं, बीबीएस कर सकते हैं। तो सिंस आपने सीयूटी की तैयारी करी, इंग्लिश और जीटी की तैयारी कर ली, उसी के बेसिस पे आपके पास बड़े सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। डीयू के अंदर एक प्रोग्राम है बीएमएस, मैंने इसके बारे में पहले भी बात करी है कुछ स्लाइड्स पहले। बीएमएस, बीएफआई, बीबी, ये तीनों प्रोग्राम्स हैं जो डीयू ऑफर करता है, एंड सम ऑफ द टॉप कॉलेजेस आर
शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, केशव महाविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय एंड शहीद सुखदेव कॉलेज तो ऐसा कॉलेज है जहां जाने के बाद में आप ये कह सकते हैं कि एक से कहते हैं ना करियर सुरक्षा प्लान है ये। आप एक टॉप बी स्कूल में चले जाएंगे, एमबीए करने चले जाएंगे इस कॉलेज में जाने के बाद, या फिर एक टॉप लेवल की कंसल्टिंग फर्म में आपकी जॉब लग जाएगी। वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस इन डीयू इन केस यू आर लुकिंग एट मैनेजमेंट। एंड लेट मी टेल यू, ये कॉलेज जिसकी मैं बात कर रहा हूं, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, ये एशिया के टॉप 3 कॉलेज में आता है। तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम लेवल पे आप मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो डीयू एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। नासीमुंजी विले पाले कैंपस एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। सेंट जेवियर्स ऑप्शन एक बहुत अच्छा है, इट इज इन बॉम्बे। Symbiosis Pune and Noida, IP University. There are 3 colleges to be looked at: Maharaja Agrishen, WIPS, and Maharaja Surajmal. So these are 3 exciting options. Now again, they are all aptitude. आप इकोनॉमिक्स करना चाह रहे हैं, okay? I have another 4-5 minutes left. I'll just wrap up by 12:05. Don't worry, मैं आपको ड्रैग नहीं करने वाला हूं। इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं, डीयू में जाना है, आपको इंग्लिश चाहिए और 3 डोमेन सब्जेक्ट चाहिए जिसमें मैथ्स होना मैंडेटरी है। लेकिन मैं आपको डीयू के अलावा आपके सामने 7 रास्ते और खोल रहा हूं, 7 रास्ते और, एंड मोस्ट ऑफ देम आर एप्टीट्यूड बेस्ड। अगर डीयू के अंदर, डीयू में इकोनॉमिक्स में कितनी सीट्स हैं क्या आपको पता है? 2764। आप चेक करिए, मैं नंबर आपको बोल रहा हूं, गलत लगे तो आप मुझे आके बताइएगा। माय नंबर इज देयर ऑन एवरी सिंगल स्लाइड। जनरल कैटेगरी की सीट्स आती हैं 45%, दैट मेक्स इट अराउंड 1300 सीट्स। अगर 1300 सीट डीयू के अंदर है एंड 1300 सीट्स के लिए 3 लाख बच्चे अप्लाई करने वाले हैं, अगर आपका नहीं मिला, व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन? दैट मींस आपको अपने लिए ऑल्टरनेट पाथवेज खोलने पड़ेंगे। सिम्बी इज एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट, नासिमुंजी इकोनॉमिक ऑनर्स कोर्स इज एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट, देन उसके बाद क्राइस्ट इज एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट, आईपी यूनिवर्सिटी इज एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट, एंड दैट इज व्हाई इवन इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है, एप्टीट्यूड की तैयारी करना पड़ेगा। कॉमर्स की बात करते हैं, वो बच्चे जो बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम पास कोर्स में जाना चाहते हैं, विद मैथ्स हैं या विदाउट मैथ्स हैं, डज नॉट मैटर। डीयू इज वन सच ऑप्शन। इंग्लिश की तैयारी करनी है, डोमेन की तैयारी करनी है, लेकिन अगर डीयू के एक अच्छे कॉलेज में नहीं मिलता है, क्योंकि कोई गारंटी तो है नहीं, कंपटीशन इतना हाई है, तो फिर आप क्या करेंगे? मैं आपके लिए 7 नए गेटवेज खोल रहा हूं इन पैन इंडिया। नासिमुंजी एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे है, क्राइस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट है, बीएचयू एप्टीट्यूड टेस्ट है, देन उसके बाद सॉरी, बीएचयू इज जीटी, इंग्लिश प्लस जीटी, आईपी इज एप्टीट्यूड टेस्ट, जामिया इज एप्टीट्यूड टेस्ट। So there are so many options which are available. CUT में आपने एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी कर ही ली है, सो CUT एप्टीट्यूड टेस्ट प्रेप विल ओपन अप मल्टीपल pathways फॉर ईच वन ऑफ यू। हॉस्पिटैलिटी अगेन इज अ वेरी वेरी एप्टीट्यूड टेस्ट बेस्ड करियर चॉइस। आप हॉस्पिटैलिटी में जा सकते हैं, वी कैन टॉक अबाउट इट इन डिटेल व्हेन यू कम फॉर अ 1-to-1 काउंसलिंग सेशन। मैं बात करूंगा मास कम्युनिकेशन की। मास कम्युनिकेशन अगेन इज अ एप्टीट्यूड बेस्ड करियर, opens up multiple pathways. So I'm just trying to give you the application of a aptitude test. You are very good with languages, you are very good with communication, you write well, okay, you want to be in media or things like that, so mass communication is a gateway for you. सिमिलरली जब मैंने इससे पहले हॉस्पिटैलिटी की बात करी थी, अगर आपको लगता है कि आपकी एकेडमिक क्रेडिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट वाज अ स्किल बेस्ड करियर, तो अगर आपका एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, आप हॉस्पिटैलिटी की तरफ भी देख सकते हैं, एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट करियर है। तो समरी अगर मैं करता हूं, इफ आई हैव टू सम अप माय सेशन, aptitude test is something which is going to be very very important irrespective of whatever you want to do, aptitude test important है। और aptitude test की बेसिक चीजें aptitude test में क्या पूछी जाती है मैं आपको समझाता हूं। aptitude test में पूछी जाती है इंग्लिश, vocabulary, grammar, antonyms, synonyms and unseen passages। एप्टीट्यूड टेस्ट में बेसिक मैथ्स, अरिथमेटिक पूछा जाता है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, टाइम स्पीड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेजेस एंड यूनिटरी मेथड्स। एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर आती है लॉजिकल रीजनिंग, coding, decoding, sequence and series, Venn diagram, sets and subsets and all of it. And aptitude test के अंदर आता है जीके एंड करंट अफेयर्स, जो कि एक सबसे वीकर सेक्शन है आप बच्चों का, because most of you do not read newspaper, do not watch news, and this is one of the most important point. 30 to 35% क्वेश्चन जर्नल टेस्ट के अंदर जीके प्लस करंट अफेयर से आएंगे, एंड अक्सर बच्चे स्ट्रगल करते हैं। तैयारी आप शुरू करते हैं बोर्ड एग्जाम के बाद, और अगर आप बोर्ड एग्जाम के बाद तैयारी शुरू करेंगे, 1 महीना या 1.5 महीने का समय बचेगा, और जब आप जीके पढ़ना शुरू करते हैं आपको समझ आता है कि जीके इज सो वास्ट,
There is no head, there is no tail, there is no start, there is no end. So it can be, there's something, this is something which is infinite. So how do you cover it up? And hence you give up this subject at all. And that is the reason why जीटी में आप काफी अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, क्योंकि 35% सब्जेक्ट में जिसके क्वेश्चन आने हैं उसमें तो आपने ऑलमोस्ट गिव अप किया हुआ है. एंड दैट इज द रीजन वाई 13 लाख बच्चों ने रजिस्टर किया, 11 लाख 10,000 से ज्यादा बच्चों ने अपीयर किया, और सिर्फ एक बच्चा इंडिया के अंदर 100% मार्क्स लेके आया जीटी में. सो अंडरस्टैंड द निटिग्रिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. इंपॉर्टेंस ऑफ जीके आपको समझ आना. What can parents do? Parents can support kids in three things. आप इनको सपोर्ट करिए, our kids are going to do very very well. Because parents का assumption क्या है? Parents कह रहे हैं मैं सिर्फ और सिर्फ पे कर सकता हूं, हमारे जमाने में चीजें अलग थी, जमाना बदल गया, आज मैं क्या करूं? मैं आपको बता रहा हूं आपको क्या करना है. आपको बच्चे को न्यूज, बच्चे के साथ न्यूज देखनी है, न्यूज सुननी है, न्यूज डिस्कस करनी है. बच्चा अगर न्यूज नहीं भी पढ़ रहा है, आप तो आपस में डिस्कस कर सकते हैं. घर पे एक 5-10 मिनट का, 15 मिनट का विंडो होना चाहिए जिसमें न्यूज और दिन में क्या हुआ, देश में क्या हुआ, दुनिया में क्या हुआ, उसकी चर्चा होना जरूरी है. दूसरा, आप जरूर देखें, आप अपने बच्चे को बजट्स दें मैगजीन खरीदने के लिए, नॉवेल्स के लिए, आर्टिकल्स के लिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक बजट है मंथ का, इतना आप लाइब्रेरी पे खर्च करते हैं. आप एज पेरेंट आप एक टाइम कट ऑफ डिसाइड करें कि इस टाइम के बाद मुझे कोई भी ऑनलाइन गैजेट नहीं चलेगा, कोई स्क्रीन नहीं चलेगी. सो पेरेंट्स हैज टू सेट दिस डिसिप्लिन फॉर देमसेल्फ फर्स्ट कि दिस इज द कट ऑफ टाइम फॉर माय ऑनलाइन, वेब सीरीज, टीवी, फोन, सोशल मीडिया. ये कट ऑफ पेरेंट्स को फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि जब पेरेंट्स फिक्स करेंगे तभी उसके बेसिस पे बच्चे फिक्स करेंगे, क्योंकि पहले हमें करना होगा जो बच्चों से करवाना है. What can students do? अगर आप सीयूटी में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, आप मुझे थोड़ा सा समय दें, अपने दिनचर्या में से 1 घंटा दें, 20-20 मिनट के 3 पार्ट्स में. एडिटोरियल पढ़ें रोज, आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी, कॉम्प्रिहेंशन बढ़ेगी, रीडिंग्स की क्षमता बढ़ेगी. आप न्यूज देखें रेगुलरली, एवरी डे 10-20 मिनट्स का न्यूज या तो देखें या सुने या पिताजी से, दादाजी से डिस्कस करें, बहुत इंपॉर्टेंट है. लास्ट 20 मिनट्स रात को सोने से पहले इज योर डियर टाइम. Drop everything and read. Insta, Facebook, Solitaire, Candy Crush, PUBG, and all these games, BGMI, GTA, web series, binge watching, whatever you are doing, shut down everything. Focus on reading. रात को 20 मिनट सोने से पहले is your dear time. Drop everything and read. That is something which is going to be very, very critical. Very, very critical. तो इसके ऊपर फोकस करें. मैं आपको एश्योर कर रहा हूं आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा. आप कोई ना कोई अच्छे कॉलेज में जरूर एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करेंगे और एडमिशन पाएंगे, अगर आप मेरी ये 3 हिदायतों को फॉलो करेंगे. And in case you still need our support, Career Launcher is there. We are going to guide you at every step. We have been counseling, teaching, mentoring kids since 1995. I have been personally associated with Career Launcher since 2000, and I've been counseling, teaching, training kids for last 24 years. 3 broad programs for you. One program is for CUET. Second program is for management, IPM, and third program is for law. So there are 3 different programs. So all these programs are very, very unique. So law program is a combination with CUET. It covers all major law entrance examination, all law entrance exam. Management, IPM program with CUET. It covers all management entrance examination, hospitality, mass comm, and other economics and commerce entrance examination. Then we have pure CUET. Somebody who's just thinking कि मुझे DU ही करना है, मुझे और कुछ करना ही नहीं है. Then you can look at this as a program. So this pure CUET specific program. This is the kind of faculty profile we have. Something which I feel really proud of. Okay, the kind of team. Look at the names. Look at the qualification. Look at the kind of experience they have. It's a team which is very, very robust, very stable, and this is the reason. This is the team at Sector 14 and Sector 83. This is a team in Sector 15, Faridabad and World Street. So this is a team which takes care of all these subjects all across. So very, very stable team which is there. And because of this, we have received some fantastic results. क्लैट के अंदर टॉप 10 में 5 बच्चे करियर लॉन्चर से थे. एलेट में टॉप 10 में 7 बच्चे करियर लॉन्चर से थे. अगर मैं बात करता हूं गुड़गांव स्पेसिफिक रिजल्ट की, ऑल इंडिया रैंक 9, ऑल इंडिया रैंक 15, ये करियर लॉन्चर के रिजल्ट्स हैं हमारे ऑफलाइन के. अगर मैं बात करता हूं फरीदाबाद के, अगर मैं बात करता हूं ऑल इंडिया रैंक 14, ऑल इंडिया रैंक 24, ये है ना. सो वी हैव गॉट 20 plus selections in Faridabad and 25 plus selections in Gurgaon in top law colleges. Management, similar kind of a performances. Okay, if I talk about CUET, fantastic results in CUET as well. 51 students scored 100 percentile in Gurgaon.
Similarly, अगर मैं बात करता हूँ 62 students scored 100 percentile from Faridabad. So these are the kind of results which we have got, and this is a testimony to the kind of faculty team, the kind of effort the career launcher, Gurgaon sector 14 and sector 83 and Faridabad sector 15 and Wall Street team put in every single student. Thank you very much. This brings me to the end of this. My name is Deepak Madan, and this is my contact coordinates if you wish to connect with me directly or any of my team members. These are the center locations which are there, and we are reachable. And you can walk in, you can discuss if you have any queries, you need guidance, you need a career roadmap. प्लान ए क्या होना चाहिए आपके बच्चे के लिए, प्लान बी क्या होना चाहिए आपके बच्चे के लिए, प्लान सी क्या होना चाहिए बच्चे के लिए, बिकॉज यू आर नॉट एबल टुडे. When you walk in, we are going to share an academic calendar, result calendar. So we are going to share with you what are the various program by program, what are the top colleges, psychologically top courses, let's say finance ke liye top options, BCom honors ke top options, every single. So there's something called exam calendar. So you can walk in into a career launcher center and collect your personal copy of the exam calendar from us. And that is something which is going to be of great help to each one of you. Okay, so thank you very much, and I am open to all queries, all questions, all doubts, whatever you may have at this point in time. Thank you very much.